ایک بار اس کی 9ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ ملعون کون ہے. کوئی بھی پڑھے. جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب بھی میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سنائے تو ملعون ہو. آمین. آمین. یعنی کہ جو خوشخبری پالوس رسول کہتا کہ ہم نے تمہیں سنائی تھی کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق مر گیا، دفن کیا گیا اور تیسرے روز کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، تو جب کوئی شخص کہتا کہ ایسے ہوا ہی نہیں ہے تو خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ وہ ملعون ہے، اور خداوند ان لوگوں کو ملعون کر چکا ہے جو خداوند کی خوشخبری کو نہیں مانتے. تو اس کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ کیونکہ خداوند کے لیے بزرا میں اور ایک قربانی اور ملک ادوم کے ملک میں بڑی خون ریزی ہے، اور ان کے ساتھ جنگلی سانڈ اور بچڑے اور بیل ذبح ہوں گے. سانڈ بھی وہی ہے، بچڑے بھی وہی ہیں اور بیل بھی وہی ہیں. یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سانڈ کی طرح حملہ آور ہوتے ہیں، اور بچڑے اور بیل جو کہ بال کا نشان ہے. بال جو ہے وہ ایک شیطان ہے. بال، بیل کو تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ بیل ہے. بیل ہے یہ شیطان کا چوتھا یا پہلا منہ ہے. حزقیل 1 باب کے مطابق اور حزقیل 10 باب کے مطابق شیطان کا جو پہلا منہ ہے، اس کا پہلا چہرہ ہے جو وہ بیل کی طرح ہے. اگر خداوند کو منظور ہوا تو اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ یہ کون سے 4 چہرے ہیں. خداوند کہتا ہے کہ ان کی گرد چربی سے چکنا جائے گی، یعنی کہ اتنا زیادہ خون بہے گا، اتنے لوگ مریں گے کہ جو گرد ہے وہ بھی چربی سے وہ خراب ہو جائے گی، چکنا جائے گی. کیونکہ یہ خداوند کا انتقام ہے، اور یہ خداوند کا انتقام لینے کا دن اور بدلہ لینے کا سال ہے. یعنی کہ خدا کہتا ہے بدلہ لینا میرا کام ہے، بدلہ میں دوں گا. آپ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کریں، ان کے لیے برکت چاہیں، ان پر لعنت نہ کریں، بلکہ اگر کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا دے، اگر ننگا ہے تو کپڑا پہنائے، اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کی مدد کریں. ہمیں خداوند نے پیار کا سبق دیا ہے. اگر ہم پیار کرتے ہیں تو مسیح کے شاگرد ہیں، اگر ہم پیار نہیں کرتے تو ہم مسیح کے شاگرد نہیں ہیں. اس کے علاوہ یرمیہ 48 باب اس کی 24 آیت میں آپ دیکھیں، یرمیہ 48 باب اور اس کی 24 آیت میں دیکھیں، کوئی بھی پڑھے. اور کریوت پر اور بسرا اور ملک مواب کے دور اور نزدیک کے سب شہروں پر عذاب نازل ہوا ہے. آمین. اب آپ دیکھتے ہیں کہ بزرا اور مواب کون ہے؟ یہ بھی وہی ہیں جو دور اور نزدیک کے لوگ ہیں، یردن کے ساتھ رہتے ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم واپس انگور لتاڑنے والے کی طرف آتے ہیں.
यशायाह 63 बाब पहली आयत से 6 आयत के मुताबिक जो हमने पहले पढ़ा है उसकी तरफ हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप मुकाशफा 16 बाब उसकी 14 से 20 आयत पढ़ें। मुकाशवा की किताब उसका 16 बाब 14 से 20 आयत तक। ये शैतान की निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादिर मुतलक खुदा के रोज़े अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। देखो मैं चोर की तरह आता हूँ, मुबारक है वो जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहानगी ना देखें। और उन्होंने उनको उस जगह जमा किया जिसका नाम अबरानी में हरमजदून है, और सातवें ने अपना प्याला हवा पर उल्टा और मुकद्दस के तख्त पर की तरफ से बड़े ज़ोर से ये आवाज़ आई कि हो चुका। फिर बिजलियां और आवाज़ें और गरजें पैदा हुईं और एक ऐसा बड़ा भूचाल आया कि जब से इंसान ज़मीन पर पैदा हुए ऐसा बड़ा और सख्त भूचाल कभी ना आया था। और उस बड़े शहर के 3 टुकड़े हो गए और कौमों के शहर गिर गए और बड़े शहर बाबल की खुदा के यहाँ याद हुई ताकि उसे अपने सख्त अजाब की मैं का जाम पलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता ना लगा। आमीन आमीन। यानी यहाँ आप देखते हैं कि 3 नापाक रूहें निकलेंगी उस झूठे नबी के मुंह से, और वो शैतान की निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादिर मुतलक खुदा के रोज़े अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। तो वो सब जो चीज़ें, वो जो लोग हैं वो जमा हो जाएंगे ताकि उस जगह लड़ाई करे जहां खुदा का मकदस है। खुदावन कहता है देखो मैं चोर की तरह आता हूं, मुबारक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहनगी ना देखें। यहाँ खुदावंद आउट ऑफ टॉपिक, यानी ये मजमून भी नहीं है, मजमून कुछ और है। खुदावंद ने छोड़कर वो मजमून कहा है कि अपने आप को बचाओ, अपनी पोशाक जो है वो ले लो, बादशाही पोशाक ले लो ताकि आप नंगे ना अपने आप को देखें। क्योंकि ये जो पोशाक होती है बादशाही की, ये आपकी रास्तबाजी है, और आपकी रास्तबाजी मेरी रास्तबाजी गुनाह की धज्जियों की मानद है, यशायाह ने जो लिखा है। लेकिन हमारी रास्तबाजी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमें मिलती है, उस पर ईमान रखकर हमें वो रास्तबाजी हासिल होती है। जब हम पाक रूह लेते हैं तो हमें ईमान से वो रास्तबाजी मिलती है जो हमारे अंदर आ जाती है, और खुदा कहता है कि वो जल्दी से जल्दी ले लो वो रास्तबाजी वाली पोशाक ताकि आप नंगे ना हो। क्योंकि ऐसे होगा कि जब बड़े का जो बड़ा सफर होगा तो तमाम लोग जमा किए जाएंगे, और जिसके पास पोशाक नहीं होगी उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, उसका मुंह बांध दिया जाएगा और अंधेरे में बाहर से फेंक दिया जाएगा, और वहां रोना और दांत पीसना होगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बच्चों, आप खुदावंद के खौफ में आगे बढ़ें और अपने लिए पोशाक का इंतजाम करें जिनके पास नहीं है। तो कहता है कि फिर सातवें ने अपना प्याला हवा पर उल्टा और मकदस के तख्त की तरफ से बड़े जोर से ये आवाज आई कि हो चुका, यानी एंड हो जाएगा। फिर बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुई, यानी खुदावंद खुदा की आवाज जाहिर हुई।
और एक बड़ा भूचाल आया। जब खुदा बोलता है तो भूचाल आ जाता है, जब खुदा आता है तो तबाही मच जाती है। तो कहता है उस शहर के, उस बड़े शहर के, बाबल द ग्रेट, उसके 3 टुकड़े हो गए और कौमों के शहर गिर गए। बहुत से लोग हैं जो बहुत सी मुमलकतें हैं वो जमीन के अंदर चली जाएंगी, इतना बड़ा भूचाल आएगा। और खुदावंद अपने लोगों को ये बात पहले से बताना चाहता है कि ये काम होगा और आप तैयारी करें। कहता हर एक टापू अपनी जगह से टल जाएगा और पहाड़ों का पता भी नहीं लगेगा। यानी कि जब जमीन खुलेगी तो पहाड़ अंदर चले जाएंगे, तो पहाड़ों का तो पता भी नहीं चलेगा कि यहां पहले पहाड़ थे। तो ये चीजें मेरे जीजो आप ज़हन में रखें, क्योंकि टाइम बहुत कम है और खुदावंद यीशु मसीह आ रहा है। इससे पहले कि खुदावंद आए आपको तैयारी करनी पड़ेगी और अपने आप को खुदावंद के आगे झुकाना पड़ेगा। अपनी रंजिशों को, अपनी अनाओं को हम छोड़ते हैं, हम खुदा से माफ़ी मांगे। मैं भी माफ़ी मांगता हूँ ताकि हमें खुदावंद के सामने खड़ा होने का मकदूर हासिल हो। दुनिया की चीज़ें यहीं रह जाएंगी, सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। हमारे साथ जाएगा तो हमारा ईमान जाएगा और साथ हमारे अमाल होंगे जो हम मसीह में करते हैं। लेकिन हमारी अपनी रास्तबाजियां वो तो गुनाह की धज्जियों की मानद है, चिथड़ों की मानद है। जो कहता जी मैं रास्तबाज हूँ, उसकी अपनी रास्तबाजी कुछ भी नहीं है। पल पल में हम झूठ बोलते हैं, पल पल में दगा करते हैं,